Hello students, welcome you all in this video lecture series of supply chain and management. This is our second video. In our first video, we have already discussed about the introduction of this subject, in which I have introduced you about what are the units which we are going to cover in this subject, what are our reference books, and what must be the prerequisite before reading this subject. And most of all, we have almost discussed about every topic which we are going to discuss in this chapter or in this subject. So firstly, we would like to recall about our previous video, in which we have already introduced you about supply chain and management. So actually, first question which arises in the mind of a student is, what is supply chain and management? In short, we also say it SCM. So, supply chain management is the management of flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final product. It involves the active streamlining of a business supply side activities to minimize customer value and gain a competitive advantage in the marketplace. So this is a brief introduction about supply chain and management. Also, supply chain and management represents an effort by supplier to develop and implement supply chains that are efficient and economical as possible. Supply chain covers everything from production to product development to the information system needed to direct these undertakings. So this is a brief introduction about supply chain and management, which we have already discussed in our previous video. So second question which arises in the mind of a student is, how does supply chain management works? So actually, typically, supply chain and management attempts to centrally control or link the production, shipment and a distribution of a product. By managing the supply chain, companies are able to cut excess cost and deliver products to the customer faster. This is done by keeping tighter control of internal inventories, internal production, distribution, sales, and the inventories of the company vendors. Supply chain and management is based on the idea that nearly every product that comes to the market results from the effort of various organizations like that make up a supply chain. Although supply chain have existed for ages, most companies have only recently paid attention to them as a value add to their operations. In supply chain and management, the supply chain manager coordinates the logistic of all aspects of the supply chain, which consists of five parts. It consists of five parts. The first one is the plan or strategy. Second one is the source, that is of raw material or services. Third one is manufacturing, that is focused on productivity and efficiency. Delivery and logistics. Return system for defective or unwanted product. Now the supply chain manager tries to minimize shortage and keeps costs down. The job is not only about logistic and purchasing inventory. According to some websites, supply chain managers make recommendations to improve productivity, quality and efficiency of operations. Improvement in productivity and efficiency go straight to the bottom line of a company and have a real and lasting impact. Good supply chain management keeps companies out of the headlines and away from expensive recalls and lawsuits. A supply chain is the connected network of individual organizations, resources, activities, and technologies involved in the manufacture and sale of a product or service. A supply chain starts with the delivery of raw materials from a supplier to a manufacturer and ends with the delivery of the finished product or services to the end consumer. Supply chain management oversees each touch point of a company's product or service from initial creation to the final sale, with so many places along the supply chain that can add value through efficiencies or lose value through increased expenses. Proper supply chain management can increase revenue
decrease cost, and impact company's bottom line. So this is our brief introduction or a brief recall about our previous video. So let us start in this what we are going to study. In this, firstly I will discuss about the requisite of the topic. Secondly, some real life examples. Some real life examples will be there. Topic 1 will be our what is supply chain management. Similarly, what is topic 2? Some assignment questions are also there. Learning outcomes, research scope, and references. So what is supply chain? So as we have already discussed that a supply chain consists of all parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer requirement. So simply we have to fulfill a customer requirement. So every parties, every member, every individual who is involved either directly or indirectly comes under the supply chain. Now all facilities, functions, activities associated with flow and transformation of goods and services from raw materials to customer, as well as the associated information flow. Some facilities are also involved in supply chain management, like the flow of information, flow of raw materials to the customer. So these all facilities are also come under supply chain. Now an integrated group of process to source, make and deliver product. अब सप्लाई चेन को जो है अपन एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जैसे सोर्स को, मेक को और डिलीवरी का प्रोडक्ट्स को भी अपन बोल सकते हैं कि दीज आर आल्सो अ सप्लाई चेन. अब ये देखिए इस डायग्राम में अपन को क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरह से कस्टमर डिमांड से क्लियर स्टार्ट होता है. उसके बाद से यहाँ से देखिए सप्लाई हो रही है. सप्लाई के बाद ये है आपका सोर्स प्लांट वेंडर पोर्ट है. उसके बाद ये है आपका प्रोडक्शन परचेज कॉस्ट है. दीज आर द इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट. These are the transportation cost, inventory and warehousing. This is the regional warehouse stocking point. This is the field warehousing stocking points, and this is the transportation cost. And lastly, customers demand center sinks. So this is a flow chart of supply chain and management. Actually, the supply chain and management is the management of flow of goods. How effectively the goods are flowing in the plant, that deals with the supply chain. Now, the goal or mission of supply chain management can be defined using Mr. Goldratt word as increase throughout while simultaneously reducing both inventory and operating expense. देखिए यहाँ पर क्या है, अपन को दो चीजों को रिड्यूस करना है, एक तो इन्वेंट्री को, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस को. तभी जाके अपन इफेक्टिव सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब इफेक्टिव सप्लाई चेन वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो देखिए क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड अगर अपन देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है कि इट इज द प्राइमरली कंसर्न विद द एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड स्टोर्स सो दैट merchandise is produced and distributed in the right quantities to the right locations and at the right time, and so as to minimize total system cost सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट. तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे लास्ट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है. अब कैसे कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट को अपन को सेटिस्फाई करना है? बाय इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड स्टोर्स. ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप सप्लायर से स्टार्ट करोगे तो अगर आपको राइट टाइम पे राइट मटेरियल मिल जाएगा तो आप राइट मेथड अप्लाई करके राइट जॉब को प्रोड्यूस कर पाओगे, और जब इन केस इफ द राइट जॉब इज प्रोड्यूस्ड देन द राइट जॉब विल आल्सो बी सेंट टू द कस्टमर. सो कस्टमर नीड विल ऑलमोस्ट बी सेटिस्फाइड. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक और तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द डिजाइन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, control and monitoring of the supply chain activities with the objective of creating net value, building a competitive infrastructure, leveraging worldwide logistics, synchronizing supply with demands and measuring performance globally. तो देखिए यहाँ पर सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट को ये कुछ स्टेप्स बोले गए हैं, कुछ प्रोसेस बोले गए हैं सर. जैसे सबसे पहला है आपका डिजाइन, दूसरा है आपका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फिर कंट्रोल और फिर मॉनिटरिंग. तो ये जो 5 वर्ड आते हैं ये पूरी तरह से दीज 5 वर्ड्स डिफाइन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीटली. अगर कहीं भी ये 5 चीजों को आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो वहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका उतना इफेक्टिव हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज ए सप्लाई चेन. तो इसको देखिए पूरा इस फ्लो चार्ट से बताया गया है किस तरह से बनता है.
कि ये टिम्बर इंडस्ट्री है, ये पेपर मैन्युफैक्चरर, फिर टिनेको पैकिंग है, यहाँ पर ये प्लास्टिक प्रोड्यूसर है, ये केमिकल मैन्युफैक्चरर, पीएनजी एंड अदर मैन्युफैक्चरर, ज्वेल और थर्ड पार्टी, फिर ज्वेल सुपरमार्केट, फिर एक कस्टमर वांट्स डिटर्जेंट एंड गोज टू ज्वेल। तो किस तरह से ये पूरा सप्लाई चेन स्टार्ट होता है, किस तरह से एक नेटवर्क बनता है। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई चेन इलस्ट्रेशन, तो कुछ एग्जांपल बताए गए हैं यहाँ पर इस चार्ट में, आपको बताया गया है कि इस तरह से सप्लाई चेन का स्टार्ट होता है। अब देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या होता है कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है, और अनसर्टेनिटी और रिस्क को रिड्यूस करने से क्या होता है कि सप्लाई चेन क्या हो जाता है, मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि दिस पॉजिटिवली इफेक्ट्स इन्वेंट्री लेवल, साइकिल टाइम, बिजनेस प्रोसेस एंड कस्टमर सर्विस। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर दिया है तो आपको कभी भी सडन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। जैसे अब अचानक से आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि आपको इतने रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर क्या तुरंत मार्केट जाओगे परचेज करने के लिए, तो उससे क्या होगा, लीड टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ओवरऑल क्या होता है लास्ट में कि कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो सम दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। अब अपन स्टेज की बात करें तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट होती है कहाँ से, कस्टमर से, फिर उसके बाद आता है सेकंड रिटेलर, थर्ड वन इज द होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेक्स्ट आते हैं आपके मैन्युफैक्चरर, फिर कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स। अब ये जरूरी नहीं कि ये जितने भी स्टेजेस हैं दीज ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द सप्लाई चेन। क्लियर, सप्लाई मतलब सबसे पहला आपका बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कस्टमर, और लास्ट में आता है क्या आपका कंपोनेंट्स दैट आर द रॉ मटेरियल सप्लायर्स। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एरो से रिप्रेजेंट किया गया है प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड बाई। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिफाइन किया गया है कि ए सेट ऑफ अप्रोचेस यूज्ड टू एफिशिएंटली इंटीग्रेट, व्हाट टू इंटीग्रेट, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। इन चार चीजों को अगर एफिशिएंटली इंटीग्रेट करके रखोगे तो वो सेट ऑफ अप्रोच वो कहलाएगा सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। नाउ सो दैट द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रोडक्ट जब बन गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि सबसे पहली बात तो इन राइट क्वांटिटीज, मतलब जितनी क्वांटिटी में आपके कस्टमर ने डिमांड की है उतनी क्वांटिटी में उसको फुलफिल करना है। टू द राइट लोकेशन, मतलब जहां पर उसने मंगाया है, कस्टमर ने मंगाया है वहां पर अपन को लेके जाना है। एंड एट द राइट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इन केस इफ द कस्टमर डिमांड और द कस्टमर नीड इज फुलफिल्ड एट द राइट टाइम देन ही मस्ट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक और होता है सप्लाई सिस्टम वाइड कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। अब सिस्टम वाइड कॉस्ट मिनिमाइज होने का क्या है कि अगर इफेक्टिव सप्लाई चेन है तो ऑब्वियस ही बात है कि अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो उससे सिस्टम वाइज कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। ये देखिए ये जो आपका सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, तो सर्विस लेवल भी क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो देखो 60 से चालू हो रहा है। 60 में क्या किया जाता था, 1960 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस किया जाता था, कॉस्ट कंट्रोल पे। फिर 1970s में एमआरपी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्लानिंग पे। 1980s पे एमआरपी, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, मटेरियल्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स। 1990s पे किसमें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ईआरपी, इंटीग्रेटेड परचेजिंग, फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर एंट्री। और 2000 में अगर देखें तो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू नेटवर्क एंड रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट, सिंक्रोनाइज्ड एंड कोलैबोरेटिव एक्सटेंडेड नेटवर्क फॉर सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। अपन बोलते भी हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटिव। सेकंड आता है आपका मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू जनरेटेड। थर्ड वन इज इंक्रीज सप्लाई चेन सरप्लस, and the last one is high supply chain profitability. So these are some objectives of supply chain and management. Now supply chain decisions. अब डिसीजन किस तरह से लिया जाता है तो उसको देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से, डिजाइन से। मतलब एक डिजाइन तैयार होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, लास्ट उसका कंट्रोल होती है, कंट्रोल के साथ साथ उसका मॉनिटरिंग भी किया जाता है। Ensures effective flow of good and information. ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी गुड्स का फ्लो होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन भी उतना इफेक्टिव ही फ्लो होना चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन का फ्लो को थोड़ा सा मैं इलेबरेट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके
जहां पर कोई काम कर रहा है वहां पर कोई सीनियर है, तो सीनियर से वो इन्फॉर्मेशन अगर जूनियर तक फ्लो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम सीनियर ने फेस की होगी तो वो प्रॉब्लम्स अगर वो जूनियर को बता देगा तो जूनियर कैन सॉल्व इट प्रीवियसली प्रायरली, वो पहले ही उसको सॉल्व कर लेगा। तो वहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरह से काम आ जाता है। एक और आता है आपका क्लस्टर्स ऑफ स्टोर नियर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के नियर में अगर आपका क्लस्टर ऑफ स्टोर है तो उससे भी आपको इफेक्टिव होगा। कोलेबरेशन विद द सप्लायर्स, सप्लायर के साथ आपको कोलेबरेट करके रखना है। एक्टिव एफर्ट्स टू स्टीयर कस्टमर एट रियल टाइम, मतलब कस्टमर को अपन को क्या है सही समय में क्या रियल टाइम में क्या करके रखना है, स्टीयर करके रखना है। और लास्ट में आता है आपका सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर सम सप्लाई चेन डिसीजंस। एक और आता है आपका वर्थ ऑफ इन्वेंट्री, मैनेज कैश फ्लो, शुड बी फ्लेक्सिबल। सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर सप्लाई चेन डिसीजंस। नाउ द डिसीजन फेस इन सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में डिसीजन फेस कैसे आता है कि सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी और डिजाइन ये कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। ऑब्वियस ही बात है कि हम जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी डिजाइन तैयार करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए, वो कुछ आगे सालों के लिए भी अपन उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। What is the chain of configuration? How resources are allocated? What process each stage will perform? Outsourcing, in-house function. So these are some supply chain strategy और design. एक और आता है आपका लोकेशंस एंड कैपेसिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड वेयर हाउस, मतलब किस लोकेशन पे हमको उसको सेटअप करना है, कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी का सेट करना है, वेयर हाउसेस कहाँ होंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखना है कि किस मोड से अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे, चाहे वो आइदर इट में बी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और इट में बी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और इट में बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब सप्लाई चेन प्लानिंग जो की जाती है वो की जाती है फॉर सेवरल मंथ्स, फोरकास्टिंग फॉर द कमिंग ईयर, एनालाइजिंग डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स, विच मार्केट लोकेशन, अब किस मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस लोकेशन पे लॉन्च करना है, तो ये सब आपका प्लानिंग में आता है। एक और आता है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्वेंट्री पॉलिसीज क्या रहेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, साइज ऑफ मार्केटिंग क्या रहेगा, प्राइस प्रमोशंस क्या रहेंगे। अब सप्लाई चेन ऑपरेशन की बात करें तो क्या होता है, जैसे वीकली और डेली ऑपरेशन डिसीजंस, दूसरा होता है इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर, तीसरा होता है आपका एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन, और चौथा होता है आपका सेट डेट्स फॉर एक्टिविटी। सो दीज आर सम सप्लाई चेन ऑपरेशंस। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, वीकली और डेली ऑपरेशन डिसीजंस, इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर, एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन, सेट डेट फॉर एक्टिविटीज। नेक्स्ट आते हैं आपके जनरेट्स लिस्ट फॉर वेयर हाउसेज, एलोकेशन ऑफ शिपमेंट्स एंड शेड्यूल ऑफ ट्रक्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब अपन देखते हैं प्रोसेस व्यूज ऑफ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन को देखने का एक व्यू होता है आपका साइकिल व्यू होता है। वो साइकिल व्यू क्या होता है, तो पहला व्यू होता है आपका साइकिल व्यू। साइकिल व्यू में क्या होता है कि जो प्रोसेस होती हैं वो सीरीज ऑफ साइकिल में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जो हर साइकिल होती है, ईच साइकिल ऑकर्स एट इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। तो पहली होती है आपकी कस्टमर ऑर्डर साइकिल, दूसरी होती है रिप्लेनिशमेंट साइकिल, तीसरी होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, और चौथी होती है आपकी क्या, प्रोक्यूरमेंट साइकिल। तो ये चार साइकिल में अपन इसको साइकिल व्यू में डिफाइन करते हैं। और अपन देखते हैं आगे, A cycle view of supply chain clearly define the process involved and the owners of each process। मतलब हर एक प्रोसेस का ओनर कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है हर एक प्रोसेस के लिए, वो साइकिल व्यू में क्लियरली मेंशन हो जाता है। This view is very useful when considering operational decisions because it specifies the role and responsibilities of each member of supply chain and the desired outcome of each process। अब देखिए होता क्या है कि हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए अगर आपने किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो उससे क्या है कि उसको पता रहेगा कि व्हाट आर हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इससे क्या होगा कि सप्लाई चेन का जो आपका डिजायर आउटकम है वो आसानी से मिल जाएगा। एक दूसरा व्यू जो होता है वो होता है पुश पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। अब पुश पुल व्यू जो होता है उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू ए कस्टमर ऑर्डर, जिसको अपन पुल प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स।
तो वो होता है आपका पुश व्यू। तो इसको एक एक करके अपन डिफाइन करते हैं। ये देखिए, एक पुश वर्सेस पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशंस। तो होता क्या है कि देखिए, कैटेगराइज सप्लाई चेन प्रोसेस बेस्ड ऑन वेदर दे आर इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू ए कस्टमर ऑर्डर और इन एंटिसिपेशन ऑफ ए कस्टमर ऑर्डर। मतलब देखिए, अगर दो बातें होती हैं, एक होता है जब कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया उसके बाद अगर आप कोई चीज कर रहे हो, या तो दूसरा होता है कि अपन एज्यूम करके चलते हैं कि कस्टमर ये ऑर्डर हमको करेगा, फिर हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं आपके पुश व्यू और पुल व्यू। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, देखिए कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या है कि ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर दोज इन्वॉल्व इन कस्टमर ऑर्डर साइकिल और ऑफ पुश टाइप। डेल में क्या होता है कि डेल असेंबल्स इट कंप्यूटर्स टू ऑर्डर and therefore all process except for those involved in the procurement cycle are called pull. Up generally, if possible, if a pull organization of the supply chain provides tighter control of inventory cost and the ability to support higher levels of product customization. So these are the push-pull view of supply chain operations. एक और देखते हैं, अब ये देखते हैं सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पुश स्ट्रेटेजीज। तो होता क्या है कि देखिए, क्लासिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज। तो पहला होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉर फोरकास्ट और लॉन्ग रेंज। तो इसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर्स वेयर हाउस आते हैं। दूसरे होते हैं लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम टू रिएक्ट टू मार्केट प्लेस चेंज। तीसरे होते हैं इंक्रीज वेरिएबिलिटी, जिसको बुल इफेक्ट के टर्म में अपन लेते हैं। इनएफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो ये कुछ आते हैं इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन में पुल स्ट्रेटेजीज में अगर अपन देखें तो क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिमांड ड्रिवन। मतलब जो भी डिमांड आएगी उसके बेसिस में अपन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा होता है नॉन और लिटिल इन्वेंट्री हेल्ड। मतलब यहाँ पर अपन थोड़ी सी इन्वेंट्री या तो बिल्कुल भी इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। दूसरा होता है फास्ट इंफॉर्मेशन फ्लो मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन फ्लो मैकेनिज्म होता है बहुत तेज होता है। डिक्रीज लीड टाइम होता है। डिक्रीज रिटेलर इन्वेंट्री होता है। डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन द सप्लाई चेन एंड स्पेशली एट मैन्युफैक्चरर्स होता है। डिक्रीज मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री होता है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। मोर डिफिकल्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ स्केल अपॉर्चुनिटीज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके डेल और अमेजन। एक और पुश पुल स्ट्रेटेजीज अगर अपन देखें तो होता क्या है कि हाइब्रिड ऑफ पुश पुल स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम डिसएडवांटेज ऑफ ईच। अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन असेंबली आर डन इन पुश मैनर्स। तो पहला होता है जैसे आपका पार्शियल असेंबली ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट विच आर मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिमांड फोरकास्ट। और दूसरा आता है आपका अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस्ड सो सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री इज लोअर। नेक्स्ट आता है आपका कि फाइनल प्रोडक्ट असेंबली इज डन बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर अपन को सिलेक्ट करना है कि पुश पुल स्ट्रेटजी में किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल आपका है कि किस तरह से आप पुश पुल स्ट्रेटजी में इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुश पुल एंड पुश पुल स्ट्रेटजीज तो कैसे है, देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पुश में क्या रहता है, मिनिमाइज कॉस्ट, और पुल में क्या रहता है, मैक्सिमाइज सर्विस लेवल। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो पुश में क्या रहती है, हाई, और पुल में रहती है लो। फोकस की बात करें तो पुश में रिसोर्स एलोकेशन पे फोकस रहता है और पुल में किस में रहता है, रिस्पॉन्सिवनेस में। लीड टाइम की बात करें तो पुश में लॉन्ग रहता है, पुल में शॉर्ट रहता है। प्रोसेस की बात करें तो पुश में सप्लाई चेन प्लानिंग रहती है और पुल में क्या रहती है, अदर फुलफिलमेंट्स रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला एम की बात करें तो एम क्या रहता है, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अब ड्राइवर्स क्यों रखे जाते हैं, टू इम्प्रूव द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। इसमें क्या क्या होती है, सबसे पहले होता है आपका फैसिलिटीज होते हैं, इन्वेंट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, सोर्सिंग होती है, और क्या होती है, प्लानिंग प्राइसिंग होती है। आउटलाइंस अब यहाँ पर देखें कि ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ए फ्रेम फॉर स्ट्रक्चरिंग ड्राइवर्स। तो लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेंट्रीज देखते हैं और ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। और क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर जो होते हैं वो देखते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं, सोर्सिंग देखते हैं और प्राइसिंग देखते हैं। अब देखिए ड्राइवर्स में देखें तो फैसिलिटीज में देखें क्या होता है कि प्लेसेस वेयर इन्वेंट्री इज स्टोर्ड, असेंबल्ड और फैब्रिकेटेड। मतलब कहाँ पर अपन को इन्वेंट्री को स्टोर करके रखना है, कहाँ पर असेंबल करेंगे, कहाँ पर उसको स्टोर करके रखेंगे, प्रोडक्शन साइट्स कहाँ पर होगी, स्टोरेज साइट्स कहाँ पर होगी,
लोकेशन क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटीज क्या क्या रखना है, और रिस्पॉन्सिबल सेवरल डिपार्टमेंटल कैपेबिलिटीज क्लोज टू कस्टमर वर्सेज एफिशिएंसी। तो ये सब रहता है आपका फैसिलिटीज में आता है। इन्वेंट्री में देखिए तो इन्वेंट्री में आता है आपका रॉ मटेरियल्स आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश्ड गुड्स आते हैं, और इन्वेंट्री पॉलिसीज आती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस आता है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है मूवमेंट आता है किसका, इन्वेंट्री का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चॉइस मेक्स बिग इम्पैक्ट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस। इंफॉर्मेशन की बात करिए तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है, इसमें डेटा एनालिसिस एंड शेयरिंग आ जाता है रिगार्डिंग इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज, कॉस्ट, प्राइस, सप्लायर परफॉर्मेंस, ये सब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो में। पोटेंशियली द बिगर ड्राइवर ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अफेक्ट ऑल ड्राइवर्स डायरेक्टली। सोर्सिंग की बात करें तो सोर्स में क्या क्या आते हैं, सोर्सिंग फंक्शंस दैट आर आल्सो आउटसोर्स लाइक प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस जितना भी एसोसिएट प्राइस होता है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके प्राइसिंग में आ जाता है। अब यहाँ पर एक फ्रेमवर्क दिया गया है किसके लिए, फॉर स्ट्रक्चरिंग ड्राइवर्स। रेफरेंसेस की बात करें तो ये कुछ बुक्स हैं, इनसे रेफरेंस करके आप इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ सकते हो कि क्या क्या रेफरेंसेस रहेंगे इसमें। दीज आर सम रेफरेंसेस विच वी हैव टू डिस्कस। तो ये रेफरेंस आप देख सकते हो, इन बुक्स का आप रेफर कर सकते हो। और एट लास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ एक एग्जांपल है, यहाँ पर वॉलमार्ट का एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्राइसिंग को, अपनी पूरी जितने भी सोर्स ड्राइवर्स थे उनको कैसे यूज किया। जैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी थी, तो इसको एवरीडे लो प्राइस, रिलायबल प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी, वाइड वेराइटी, सप्लाई चेन मस्ट बी एफिशिएंट विद एडुकेट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, लो लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज होनी चाहिए, जिससे स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या किया था इन्हें, ओन इट्स फ्लीट ऑफ ट्रक खुद। फैसिलिटीज में क्या रखा था, सेंट्रली लोकेटेड डिपार्टमेंटल्स वोंट ओपन स्टोर्स वुड अंटिल डिमांड जस्टिफाई। तो इस तरह से करके ये वॉलमार्ट का स्ट्रक्चरिंग ड्राइवर, मतलब किस तरह से ड्राइवर को स्ट्रक्चर किया था वॉलमार्ट ने, उसका एक एग्जांपल दिया था। So this is all about this video. In this video, you have already learned about the supply chain. What is supply chain? You have already learned about the definition of supply chain. What are the components of supply chain, and how you can implement the supply chain and management effectively in the production of a product from the raw material early stage of its production, that is from the raw material to the final product good. तो ये इस तरह से आप इस वीडियो को देख के कुछ थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट सम मोर वीडियोस, सम मोर टॉपिक्स इन supply chain and management. Also, we will do some case studies of supply chain, that in which company they effectively they have implemented supply chain and how efficiently they have increased their productivity after applying the goods of supply chain and management. So, good day to all. Stay home, stay healthy. I am Deepak Sharma, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, and I am the trainer of your subject. Thank you.